ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਵਕਫੇ ਜਦੀਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਐਨਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਬਈ, ਐਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਵਕਫੇ ਜਦੀਦ ਦਾ ਐਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਿਨ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਐਨਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੀਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਡਿਟ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਡਿਟ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਭ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਇੰਨੇ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਖ ਤੇ ਥੋੜਾ ਐਮਦੀ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗੇ, पर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਖ ਤੇ नहीं रहे एमदी। ये अतीक शाह साहब तो का मुझे पता है, ये हमारे मोहल्ले में रहते थे दारुल में, और इनकी जो चंदे की हालत होती थी वो मरीख में ही। इस बात की डिस्कस की जरूरत नहीं है, कौन कितना देता कितना नहीं, उसका वो छोड़ दें उस बात को। अभी भाई साहब को दस दियो कि मैं मुसी हाँ ते मेरा पैसा ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਲਾਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਮੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਪਲਾਟ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਮਾਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਰਿਸਾਲਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। आपके कितने पैसे जमात ने देने हैं? अतीक शाह साहब, आपके पैसे कितने जमात ने देने हैं? ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਚ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ? ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਮਾਫ ਸਦਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਬਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨੇ 6 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ 6 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਲਾਟ। ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਫੱਟਾ ਲਾਣਾ ਸੀ? यार वाटर मिर्जाई तो इतना अकल का कोरा है, वो कबर की बात कर रहे हैं जिसके पैसे देते थे। सर मैंने समझ आ रही है सर। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਰਾ। 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ? ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜੇ? ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਨਾ, 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਝੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 50,000 ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਖਾਤੇ ਚ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਰੁਪਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਿਓ भाई सारे हिसाब लिख के दें। ਤੇ 18000 ਰੁਪਏ 50 ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 9 लाख रुपया बनता है जी। वाटर मिर्जाई ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। हिसाब मेरा बड़ा तेज है, 9 लाख रुपया बनता ਮੂੰਹ है ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯਾਰ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਫੜੋ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਯਾਰ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मुंह तो मारो जो करोगे, चुप पैसे यार। $250-250 बनते हैं। अभी आमिर नजीर साहब हुक्म करें, अभी देखे हम इधर 20 इकट्ठे कर देंगे। ਚਲੋ ਜੀ 250 ਵਾਟਰ बनते ਸਾਹਿਬ, हैं। ਮਾਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਾਟਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ $27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੋਸਟਰ ਬੁੱਕ ਲਾਏ ਕਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਰਬਵੇ ਚ। ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਵਸੀਅਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, 8 ਬਣਦਾ 8 ਦੇ ਦਿਓ, 6 ਬਣਦਾ 6, 15 ਬਣਦਾ 15 ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। बिल्कुल ठीक। कहा तो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। अच्छा, ये सर इन्होंने बचपन में ही वसीयत कर दी थी। आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आप 2 भाई जो थे उनमें से एक बात कर रहे हैं, ऐसी बात है ना? मेरी शादी तेरे खानदान की हुई है। फरूकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुझे आपकी आवाज से समझ आ गई फरूकी साहब बात कर रहे हैं। आपसे मुलाकात भी हुई थी टोरंटो में, आपके वालिद साहब जब आए थे उधर। हाँ बिल्कुल हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी भाईजान। मुझे आपकी आवाज से पता चल गया कि फरूकी ब्रदर में से कोई एक बोल रहे हैं। ये तो यार आवाज से पहचान लेते हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा, बड़े खतरनाक बंदे हैं। बहरहाल शाह साहब, आप जरा एक दफा मुझे राना जाहिद से पता करा दें। फरूकी साहब ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਰਾਣੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਚੜਾਓ। 9 लाख रुपया यानी कि $4000 और $500। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ $4500 ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। सही गल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ $4500 ਮਾਰ ਦਿਓ। $4500 ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 26 ਅਪ੍ਰੈਲ। 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। $4500 ਹੋਰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ देर ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਣੇ ਕਿ ਦਿਲ ਲੱਗੇ। चले फिर उसके बदले हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। आपको इतना क्या चाह चढ़ा था कि आपने जनाब वसीयत करा दी? आपको अपनी ईमानी हालत का पता नहीं था? तरक्की हो रही थी, देखो मैं पहले नहीं वसीयत कराई, फिर मेरी ईमानी हालत तरक्की हुई, मैं वसीयत करा दी, फिर अल्लाह ताला ने मैंने होश अता फरमाई, मैं खोल के पढ़िया तो मैं कहो यार मुझे पता लग गया है। वो मैं क्या प्लाट भी वापस करो तो सारा कुछ अपने पैसे ना कर लो, ये तो सारा ही खुद करता है। खुद बाद जब पता लगा तो मैं क्या मेरा हिसाब किताब कर दूँ। मैं बड़े बिल्ला मारने लगा। यानी कि आपने जमात का वक्त ज़ाया किया, यानी कि आपने शरीफ लोगों का वक्त ज़ाया किया। कंजर खाना खोलने वाले शरीफ लोग। यार तारिक चौहान साहब, आप तो चुप ही रहा करें ना, आपकी तो अपनी जमात का कुछ शरीफ पता कहाँ से तुम हो गए हो? नहीं। कोई शराफत दिखाओ। मिर्जा महमूद कितने जाता है पेरिस में, क्या करने जाता है? तुम कहते हो शरीफ लोग। जर्मनी मिस रूफो को लेके जाता है कादियान, किस लिए लेके जाता है? अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। वैसे $4500 के अंदर जो जन्नत ये ले रहे थे, वो अगर आप ले लो तो सौदा महंगा नहीं है। 4500 दो, वही आप ले लो भाई। मैंने वसीयत की भी नहीं है यूसुफी भाई, मैंने की ही नहीं है वसीयत। लेकिन जिस जन्नत के मकसद के लिए उन्होंने $4500 जमात को दिया है, तो वो मकसद आप ले लो। आपको तो पता है ना कि वो मकसद सही था। ये तो बुरा हो गया है। मुझे मैंने आमिर नजीर साहब को रोल मॉडल बनाया था। एक दफा इन्होंने कहा था मैं जन्नत ही जाऊंगा तो तू दोज़ख ही जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर ये जन्नत में जा सकते हैं तो मैं तो पक्का ही जन्नत में जाऊंगा। उसके बाद मुझे वसीयत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूसुफी साहब बड़ा सुनिया सी कि बैरियट उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड ने, पर अहमदिया जमात उस ढेर अगे फ्रॉड है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੋ ਗਿਆ ਸਭ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ।
यार नहीं देखिए यार वाटर साहब, कैसी मेरा बात ख्याल है कि सौदा कर लेंगे। सौदा बहुत भारी का सौदा 4500 च जन्नत मिलती पई है यार। है यार। मेरा नहीं आपको ख्याल है पता कि है कि सौदा राना मार जायद ने इनके मुतालिक क्या कहा हुआ है? उनको छोड़े, वो जो भी कहा है, लेकिन अभी आपके पास कितना अच्छा गोल्डन जी, चांस है। मैं $4500 में आपको जन्नत सुन लो मिल मेरी रही है। गल, यूसुफ साहब ये भाई वारी राणा जायद ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ये ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। आपने कभी जमात की इफ्तारी अटेंड की है? चल वाटर साहब मैं ही अर्ज कर रहा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ आपको ਘਰ पता है कि आप किस कदर सुन लो, बदनाम है कि मेरी आप यार सुन किसी लो, भी इफ्तारी पे जहाँ भी गए हैं, आप $200 का तो इफ्तारी डिनर कल्ले खा जाते थे। नहीं पहले तो आपको ये पता ही नहीं है कि लाहौर के अंदर सबसे मशहूर इफ्तारी अतीक शाह करवाता है, उसके घर में आके जमात इफ्तारी करती थी, और जमात वाले कहते थे कि यार ऐसी इफ्तारी पूरी जमात में और कोई नहीं कराता जो लाहौर अतीक में शाह किधर आप इफ्तारी कराते थे भाई? लाहौर के तो हम रहने फ्राई वाले हैं। मच्छी फ्राई, मटन, हम की लाहौर कहते के हैं रहने वाले हैं। चाप। आज तक अतीक शाह एक किसी बात का आप नाम नहीं हुंजा सुना ब्लॉक में हमने। आज चले, सुन लो मेरी गल, हुंजा ब्लॉक चले जाओ, हुंजा ब्लॉक से मेरी रिपोर्ट ले लो कि अतीक शाह की इफ्तारी पूरे हुंजा ब्लॉक से सब कुछ बेहतरीन है कि नहीं। पूरा कोई जमात जरा हुंजा बंदा ब्लॉक कवे ओदी मेरा गल करा दो ताकि मैं छितरा ना बनावा कि हाँ भाई गल है सही है। बात ये है कि इस पर तहकीक कर ली जाएगी और आपको जो आपका हक बनता है वो मिलना चाहिए। अर्ज करता है कि हुंजा ब्लॉक अलामा इकबाल टावर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा एड्रेस दस रहा, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਜ਼ਾ ਬਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਰ? ਕਿਸ सन में रहते थे ਹੁੰਜ਼ਾ ਬਲੌਕ आप? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ 2000 ਇੱਥੇ ਆ 15 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਬਲੌਕ ਹੀ ਸਾਂ। कौन से 15 सन 18 से लेके कौन से सन तक? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਜਨਾਬ, 90 10 अकबरी 100। स्टोर का पता है? अकबरी अकबरी स्टोर स्टोर का मेरे घर के बिल्कुल पीछे, मतलब उसके साथ वाली गली जो है ना, वहाँ पे सीएनजी स्टेशन था, साहिल सीएनजी। अकबरी है, स्टोर दूसरी तरफ पे है, उन बिल्कुल है। दोनों के बीच वाली जो पहली गली है उसमें मेरा घर है, 7वां घर राइट साइड पे। अच्छा कौन सा आपको? अच्छा आपके कौन से बड़े मशहूर ओहदेदार आपके घर के पास ही रहते थे? मैं खुद ज़ईम इंसारुल्लाह, नायब ज़ईम इंसारुल्लाह, मेरे से बड़ा कौन मशहूर होगा। और नहीं सर, एक ज़ईम अंसारुल्लाह एक और होते थे, आर्किटेक्ट साहब। आर्किटेक्ट साहब हाँ, ज़ईम अंसारुल्लाह थे, आर्किटेक्ट साहब थे। वो असम ब्लॉक में ना होके, असम ब्लॉक नहीं की नहीं, शायद आप आपके हुंजा ब्लॉक में थे यार, अकबरी स्टोर के पीछे रहते थे। हाँ, वो एक बुजुर्ग थे, मुझे अब नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, वो आर्किटेक्ट नहीं थे, वो तो बड़े बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े से बेचारे, वो तो व्हील चेयर पे थे, एक बुजुर्ग और उनके घर नहीं में नहीं, जाता। इतने बुजुर्ग नहीं थे यार, बड़े एक्टिव बंदे थे, बड़े गोरे चिट्टे एक्टिव बंदे थे। नासिर साहब ना, वो बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे नहीं यार, नहीं 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 नहीं। चिट्टी मूछों वाले, चिट्टे अकबरी बाल, चिट्टी स्टोर मूछे। से एक गली छोड़ के एक गली सीधे हाथ घर था उनका अंदर। नहीं, एक नासिर साहब है, एक वो डॉक्टर साहब थे, क्या उनका नाम है, जो बस होम्योपैथिक आप डॉक्टर रहते थे। वहीं पे ही थे, लेकिन बात ये है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जिस देख बंदे ले। की आप बात कर रहे हैं जो आर्किटेक्ट थे, वो नासिर साहब थे, सफेद मूछा वाले, सफेद बालों वाले, लेकिन वो बूढ़े थे बेचारे, व्हील चेयर पे चले गए थे। चले अभी आपको याद नहीं आ रहे, आ जाएंगे आपको याद। बहरहाल जो भी है, कोई नहीं। नासिर आपको जमात ने क्या तो जवाब साहब आप दिया है? इकबाल टाउन में रहते रहे हैं, इकबाल टाउन में। मैं तो दस सकता है वाटा साहब, मैं नायब ज़ईम इंसारुल्लाह और ज़ईम इंसारुल्लाह दोनों रिया वहाँ, उसको पता कर लो मेरा, तो पता लग जाएगा अतीक शाह कौन है। अच्छा, तो आपने उस जमाने में वसीयत की भी, फिर 19 साल वसीयत रखी, फिर उसके बाद जब आपका प्लॉट खुस गया तो आपने वसीयत पैसे कैंसिल वापस कर कर दो, प्लाट भी नहीं दे रहे, पैसे में की करना है, प्लाट देना जाके अच्छा पैसे वाटर, आप भी इकबाल आप टाउन मैंने में रहते कब्जा दे हैं? दो 6 फुट भी 3 दिया? फुट नहीं का। भाई, मैं माल्टाउन में रहता था। अच्छा मैं कि नहीं तो तुसी भी मेरे मामे हो फिर। अब मामू कह लें यार, अच्छी बात है, बड़े प्यार का रिश्ता है इसमें कौन- यार मेरा वाटर मेरा साहब, ननिहाल वहाँ रहता ना इकबाल टाउन में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वाटर अच्छा साहब अच्छा 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। यार अतीक ये शाह बंदा साहब दे अतीक मुंह शाह मंगे। इतना बदनाम है, ये यकीन माने कि 10 दिन रोजों के आखिरी में ना $2000 की इफ्तारी खा जाता था। ये इतना टब्बर लेकर आता है और मस्जिद पे हमला बोल देता है। ओ भाई, इसकी तरफ पैसे निकलते हैं जमात के। आमिर भाई जाने से पहले बताना, फिर हम प्रोग्राम ऑफ करेंगे।
आगे सनी साहब कोई नहीं। और दूसरी बात आगे मलिक साहब, अगर कोई बंदा $10 ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ भी ਜ਼ਿਕਰ चंदा देता खैर हो हो ना, रहा उसका है कभी इखराज नहीं होता। हैं? $10 चंदा देने वाले का भी इखराज नहीं होता। ये चौहान वर्गे जो होते हैं ना, ये $10 और $5 भी महीने के नहीं दे सकते। मैं क्या तो सनी साहब आ गए? मतलब सनी इसका साहब मतलब आ गए आप ने ये मान और रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ अकील शाह साहब ਜ਼ਿਕਰ ने खुद जमात छोड़ी यूसी भाई एक मिनट ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा अच्छा। ਤੁਹਾਡਾ उनका नजरिया है। लेकिन अभी वहां पे कुरानिस्ट इकट्ठे हैं सारे यार ये कुरान से तो हमारी जान छुड़वा दो यार। एडी बोर कौम है जिसको पता नहीं 8 दिनों से कब्ज हुई हो, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं यार लोग। बस ऐसे ही है बहुत ही बोर। ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣਾ फिर कहते ਇਹਨਾਂ जो ਦੀ ਜਾਨ भटिया आ ਛੁਡਵਾਣੀ जाते मुंह से ਤੁਸੀਂ ਕੀ स्लीप ਕਰਨ ला ਬੈਠੇ के ਹੋ ਭਾਈ उनके ਆਪਣਾ को ਕੰਮ जान ਧਿਆਨ छुड़ा ਨਾਲ दो वाटर साहब पक्के मुसलमान हो जाएंगे अच्छा इंशाल्लाह कल देख बड़ा शुगर लगा ना, कल बड़ा शुगर लगा ते कल ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਾਨੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਚੁੱਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਲਮਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤਬਸਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਬਰ ਸਾਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, चलो जी ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਣੀ ਹੈ। आमिर नजीर साहब उधर चले गए हैं सनी साहब के पास अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़। यार बड़ा बहुत यार जिन लोगों ने डबल टैप आज 263.7 है और हमारी बरात 100 से भी ऊपर रही, जज़ाकल्लाह खैर जिन लोगों ने भी इसमें किया, खास तौर पे शाम साहब ਬਿਠਾਈਏ ਫਿਰ ਅਮਜਦ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਤੂਬ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ बैठा कल वो वैसे भी बोतल पी के आ गया सी। मलिक साहब आपने मोनेटाइज नहीं कराया हुआ अपना अकाउंट? क्या होता है वो? पैसे मिलते हैं यार। आज इससे 273 पे आपके $273 बने होने थे। नहीं मोनेटाइज नहीं कराया वाटर भाई, पैसे पैसों का ज़िया रसूल दा मदरसा बनवा लो। मोनेटाइज कैसे कराते हैं? ये कोई तरीका बताते हैं, ये टिकटॉक के ऊपर ही वीडियोस है। चलो फिर देख लेंगे। हाँ जी, आप तो अकाउंटेंट है, खुद कुछ कर लें अपना बेहतरीन सा इंतजाम। वो इधर ही कोई इकट्ठे हो जाते हैं ना थोड़े बहुते, तो उसके मैं फूल खरीद के लामा साहब को मार देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। यार ये जो अतीक शाह है ना, इसको मशवरा दें कि ये किसी जिन से टक्कर ना ले, नहीं तो इसकी बनियान और अंडरवेयर भी इसके उन्होंने ले जाने, उन्होंने अपना हिसाब इसकी तरफ निकाल देना। सही बात। अब ये देखिए जरा बातें कैसी कर रहा है यहाँ पे, इसके अपने पल्ले से निकल आने हैं पैसे। पता लगे उनको और प्लॉट खरीद के दे रहा है। हाँ तो ये है और चले फिर चलिए, सैनी साहब को शुगल मिला, सुनिए जरा। सर वहां पे ना 1 मिनट भी आजकल बात करने का मौका नहीं मिलता। कुछ बंदे हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बम्बास्टिक बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन एक दिन में आपसे बड़ा मुतासिर हुआ था। अच्छा बड़ा। वो क्या जिस दिन आपने सनी साहब से पूछा था कि आप मिर्जा साहब को सच्चा मानते हैं या झूठा मानते? सनी साहब फंस गए उन्होंने ब्रांड भी तो चला ली है ना भाई। सर उन्होंने हमारी कई दफा ना, बस आप लोगों को ना एक तो दावा पता नहीं क्यों नहीं मिलता उनकी किताबों से। नहीं एक काम और करोगे, किसी दिन कश्मीरी ਨੂੰ भी नहीं पाते यार वाटर भाई। मैं फोन पे आपको यही कहना था। देखिए कश्मीरी बहुत शानदार आदमी है, उसने अपने फिरके के मुतालिक एक बड़ी सच्ची बात बताई हुई है, और उसकी वजह से मैंने ना पूरा शियाइज्म जो है ना वो आपके हाथ पर आ जाता है। उसने मुझे बताया कि जनाब अली, हम ये जो 12 के 12 इमाम है ना, सारों में सारी नबियों की सिफात मानते हैं, ठीक है। झूठा और शिया नहीं है, बना हुआ है। और ये जो समीर है ना, इसने कहा है जो हमारे हाजिर इमाम होते हैं ना इस्माइली की फिरके के, वो पूरे तमाम अंबिया की सिफात रख कर है। लेकिन ये जो आपने उस दिन कुंडी डाली थी ना, ये बड़ी जबरदस्त कुंडी है। वो कुंडी डल गई, इंसानों ने मिल गए।
तो बस फिर कुंडी डालनी पड़ी थी भाईजान। बात पता है क्या है, अच्छा भला सारा सिस्टम चल रहा था, ये पता नहीं कहाँ से 1974 आ गया। एमनियों की गैर एमनियों में रिश्तेदारों में शादियां भी हो जाती थी, उनकी इधर हो जाया करती थी, अच्छा भला सुकून का मोहब्बत का माहौल था। तो ये सारा कुछ तबाह कर दिया इन्होंने पकड़ के 74 की कानून साजी करके। हमारी तो अपने कितने रिश्तेदार जो हैं वो गैर अहमदी भी हैं और अहमदी भी हैं, लेकिन फिर अब बहुत फासले हो गए हैं। अच्छा, हर कोई नीचे लिख रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव। पकड़ा वो बड़ा शुक्ल पड़े सी, बड़ा शुक्र। निशान भाई की वजह से हुआ ऐसा। ड्रिंक एंड ड्राइव कुछ सी पींदे हो उन्होंने क्या जी। सर शान भाई जो है ना, इन्होंने एक बड़ा फार्मूला बता रहे थे एक ब्रॉड में बैठे कि पाकिस्तान चंद जंगे जो हारा है ना वो क्यों हारा। तो इन्होंने ऐसा जबरदस्त वहां पे बैठ के समझाया लोगों को, सब के सब इनके कायल हो गए। देख लो फिर। हाँ जी, माशाल्लाह इनके पास बहुत